here. In ServiceNow, the agent is a role we call this ITIL role. And when we assign this role, you have all this the capability that you can work on this one. But my point is the right now the incident. So let me open the incident, and what I will do, I check on the all, and you can see this is the all the incident which is come from different companies. So this is the list of all the tickets which is right now created in the ServiceNow through the email, and we incorporate all the scenarios, the workflows in the service now. Let me show you that how we can check this is all incident and which incident is belong to which company. So here we have a gear button. In gear button you can edit the column. So here you have a capability to add whatever you want to. These all the list of the attributes that you can want to add into the list of the tickets. So let me find the company. So what I will check it, and then if you can see here, see, then you can drag it up whatever you want to display it. So let me grab it up here. So things and that's okay. And you can see this is the UTF tickets, and here is the UN New Jersey, and you can see all the ticket and whatever you want to like add it the information. If it is your is required to display here, you go to the gear button and add it, and then you have all the option. This is the all the list is the out of the box. So and here the on the beside this tab is my list, that here you can go and create your own list. Let me show you like how you can create your own list. For example, I go and add a new list, and I want to create my own list. Like for example, I here in this, when I come to the office, I want to check all my like UTF tickets. So what I will do, like I will create a list like UTF tickets, and here it's called the incident because it's related to incident tickets, and it's automatically add the mandatory information of list of all the columns or attributes. So below is the condition. What I will do, like select the company because I need to company name, and is UTF is yes, and create a new list, and you can see it's automatically display all the tickets which is relevant to the UTF. And if you want to see the company name, and I will add the company name here. So yep, so these are all like ticket you can, and again you create your own list. For example, these are all new and you want to like create the one more list which is you want to show in progress, and you can create by own. Like for example, if I create like ticket UTF uh, student, and this is one time like effort. It's when you create your own all list, so it's only one time effort. Like state in progress and company is UT. So I can see this is only two tickets which is in progress. So it's very intuitive that you can create your own list, maybe close, incident, or hold. You can create your own list. So this is the part where you can align your own like a daily interactive with different companies or different tickets. So let me Mhm. open one ticket and then how like it's look like in inside when you open the ticket. So there is a three part of one ticket. One is the overview.
like a summary. You can in like a bird eye view, like you can see have summary, short description, details, all of it in overall tab. And then you have a detail tab, which we have the fields. So let me close this one so that you have a good visibility. So this is short description. Here you can see the incident number, states, the caller name, the impact, urgency, priority, the channel from where this ticket has been created, then category, subcategories, and the impact, all this same information, and the assignment group. So this is assigned to the this Choksky so Siddhivang. So this is the assignment group that you can change the the assignment group here. For example, if you want to assign this assignment group to another team, and you can come here and then you can change your assignment group from here. And the other part is that the assign to fields, and you can assign this ticket to yourself or as well as the other team members. Like if to assign to the Rahul. So and then you can, there are also the different like cause or the cause of problem you can add, and this is the resolution fields. When you resolved it, obviously the system is asked about the resolution and the resolution notes over here. So I assign this ticket to Rahul, and what I will do is save it. And again, if I go to this last, the tab is related to related records. Like for example, every, because this is the incident, an incident related to the SLA. So you can see the SLA for the resolution and response here. You can see what is the timeline. If it is a breach or close to breach, you can easily and and for the requested item tickets, you will obviously have the related records is the child task or the other information along with the SLA here. So if this is the overall the ticket, and then we have the on top of it we have different more capabilities, like here if you can see compose. Here you are interactive because right now this is creating the tickets from the email. So whatever you want to like communicate from this with the requester, you obviously what, there is a two type of the comments you can handle in the ServiceNow tickets. Like one is the comments which is only visible to the user. For example, if I say testing 1 2 3 and then post it, the system will automatically create a one email and send back to the requester. The other one ticket is the work notes. Work notes is only pure communication between two agents, or it is only visible to the agents, the back end people. For example, I'm the manager, or the other agent can see the comments. So user will not able to see any comments when you create anything or write anything in the notes. So it's testing, if I think testing, and it will only visible to. So this is, you can see this is logged and this is for the users. So you can, this is the system also mentioned with the icon one. And we have a third option is email. For example, if I directly ask, and you can see this, the system automatically pick the requester information about their email, and you can also compose the email directly over here and send email. So right now it's blocked, so it will not receive any ticket email to the user. So this is the part, the whole, the tickets and the you can say audit trail, the activity trail, and it one whatever you will like add information in the tickets, the system capture in the order trail. We call it order trail or the activity panel. So you can see from start to bottom, like when it will created, who created this one, and what's the communication between the agent or with the requester or between the agents. You can also see here about all the activities. And then we have this few agent assist part.
This is the part which we'll handle later on. Right now, it's a disable one, but here you can put any attachment here through images or the documents or whatever. This is the and here is the template. But this one is we handle the later on. The agent assist is the which is the help the user through their pool of their previous ticket. They help the incident tickets that okay you have this similar kind of incident previously, you resolved it, and this is the resolution, and the agent easily but one or two click agent can easily resolve that ticket on the base of the previous one. So that we enable later on. So these are all the information that we discuss. But that one is the pure the incident tickets details and the activity which we will coordinate with the requester and uh, the users. Then we have a dashboard, which is the out of the box one, is agent IT dashboard we called it. And here you can have a bird eye view like how many closed ticket you have been done, the missed SLAs. Right now because we don't have any real data, so that's why it's not you can not visible anything here. Average age of open incident, which is like if incident is longer than the opening dates, or the it's also mentioned over here. So these are all the information related to you, and then you can also check that okay, I need to check about the different filters over here with last year's, last week, quarter, last 6 months, today, and yesterday. So these also have a capability to change the date, and you can check the filters for this dashboard. So yeah, so this is all about right now for the agent point of view. So any question, Mhm. please go ahead. So how can I search old tickets? The old ticket data is migrated to ServiceNow. Or... Right now, all ticket. So Umar, I think is the right guy. Mm. Right now, I Okay, don't think so. no. So Okay. all tickets data from first service we will not be able to import into ServiceNow. But as Kansam mentioned, like we will be running parallel, this month, right? So what we're gonna be doing is we're gonna be fetching all the data in CSV from fresh service, and then Mhm. keeping as a record at the back end in case you guys need it or anything, so that you can refer to that file. Okay, because sometimes these customers they are Just referring to old tickets where they have Mm-hmm. some project was implemented and all the documents, including all the files are attached to those tickets, and those references are very useful actually. A very good Okay. point. there This is an absolutely great point. For that, we are trying to figure it out. Uh-huh. Customer principally agreed that they will not need this complete data into the new system, and it is a very hectic job to import all data into ServiceNow. But as Umar mentioned, one tedious way is that we take a dump of that data in CSV Mhm. file, and then we keep it there for you guys so easily find something out. And another point which I'm strongly considering is that that is only for internal. We don't have to share it with the customer. That we keep this fresh service up and running for next at least 2 more months without you guys having access to it. So there is a common one user which will have access to this platform. And in this kind of situation where you need to access old data, either will have to create a mechanism that a request is generated and somebody uh, be able to give you all that, or you can log into the system and look at yourself. That could be one way, but Mhm. parallel run, the objective is that while from this Monday onwards, anything you do in fresh service, for example, a level one incident is escalated to level three. You do that in fresh service and you do the same thing in service now. So in 3 weeks,
you have a up and running system which is identical to fresh service, so you can start using it without any hiccups, without any miss outs. So for next 3 weeks, we continue to do this exercise, and ideally, it will have at least the service data from most recent history be available for you guys to continue to work. And for historical data, we'll figure it out that CSV file may be a good option, or keeping this system alive with only one user who has access to it, and for this kind of here and there request, we can use that access to get that data for you guys. All right. Understand. Okay, there is one more thing, that is that when we got the access to the system, we noticed that service requests, they are not getting made in they are not getting made in ServiceNow. When we select the ticket category as service request, it doesn't populate in Omer, ServiceNow. let's do one thing. Why don't you share the screen and show us? That way, the team will be able to answer your question, or if there is any shortcoming, they'll be able to take a note of it. Okay? Sure, sir. Let me share my screen. So you can, log into Fresh Service and ServiceNow, show us where the difference is, and we'll be able to see that. Yeah. Okay. Is everyone able to see my screen? Not It's yet. popping up. Not yet. Yeah. Yeah. Yes. Super. Now, yes. ओके अभी थोड़ी देर पहले एक अभी जब हमें एक्सेस मिला था तो हम लोगों ने एक टेस्टिंग की थी, और उसमें एक टिकट ये क्रिएट हुई है, ये वाली, इसका यानी कि टाइटल एक रिक्वेस्ट लेस्ली ने किया हमसे, तो ये थी सर्विस रिक्वेस्ट थी। तो जब ये सर्विस रिक्वेस्ट हम लोगों ने बनाई है ना, तो वो हमारे इसके अंदर पॉपुलेट नहीं हुई थी फ्रेश सर्विस के अंदर। In manually generate हुआ है ना, तो in that case you'll probably have to do it manually in ServiceNow, if that is my नहीं, वो टिकट अच्छा नहीं, if there is a scenario, Umair, if correct me if I'm wrong, initially there was an incident, then you converted it to service request, right? जी, जो इनिशियली जितनी भी टिकट्स आती हैं उनकी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी फ्रेश सर्विस में इंसिडेंट ही होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग उसको सर्विस रिक्वेस्ट करके जब हम लोग ट्रियाज करते हैं तो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में जब सर्विस रिक्वेस्ट की कैटेगरी ट्रियाज हो गई तो वो चीज इधर पॉपुलेट नहीं हो रही थी बिफोर ट्रियाजिंग द होल वो टिकट। आप जाते हो ना टिकट इंसिडेंट पे, क्रिएट हुआ होगा, यहाँ इंसिडेंट क्रिएट इंसिडेंट हुआ, तो हमने क्रिएट हुआ जितने होगा उसके अगेंस्ट। उस जो पर्टिकुलर इंसिडेंट आपका फर्स्ट सर्विस में क्रिएट हुआ है, वो सेम इंसिडेंट यहाँ पे भी क्रिएट हुआ होगा। वो Basically- हुआ था, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने अपनी कैटेगरी चेंज की, लेकिन वो वो स्टिल आपने फर्स्ट सर्विस के अंदर ही चेंज किया था इंसिडेंट को सर्विस रिक्वेस्ट में। तो जब आप सर्विस नाउ में काम करेंगे तो आप इंसिडेंट को सर्विस रिक्वेस्ट में खुद ही कन्वर्ट करेंगे। आप वो इंसिडेंट ओपन करें, फिर हम आपको बताते हैं वो आप कैसे सर्विस रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। Thank you, Noor. Yeah, that was my understanding too. कुछ ऐसे मैनुअल एक्शंस हैं जो आप फ्रेश सर्विस में लेंगे, तो we expect you to take those actions in ServiceNow in order to keep both systems in sync. तो जब फ्रेश सर्विस रिटायर हो जाए तो आपके पास ये फ्रेश ServiceNow उस स्टेट में हो जहां पे आप इसको यूज कर सकें। This is one of those examples. Okay, now बेसिकली go to आपको वो that डिफरेंस hamburger. नजर नहीं आए कि आप जो वहां पे काम कर रहे हो यहाँ कोई डिफिकल्ट ना हो, तो सिनेरियो हमने जितने भी हैं वो सेम ही कैप्चर किए हैं। जिस तरह आप वहां पर इंसिडेंट को आप रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं, यहाँ पर भी आपको इंसिडेंट को मैनुअल रिक्वेस्ट में चेंज करना होगा। तो प्लीज नूर proceed. Okay, there's a hamburger icon beside incident. You can click on that one. Yes. At the top left. The grill button, 3 lines button, left side. Sure. Yes. Yes. Okay, we have option change incident to request. Click on that particular one. Third Yes, number. third one from top. From top, yes. click it. Yes.
जब Okay, आपको ये now number you वाला need Copy to that go request to number. the request. That is a particular request number on the top. Right here, 001 इसको double कॉपी zero कर लें यहाँ double पे one. ना हाँ इसको कॉपी कर लें इसे and आपने then we सर्च go to करना है yes. and open it up. Yes. the blue one. ये आपकी रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई है उस पर्टिकुलर टिकट के अगेंस्ट. ठीक है. और हम ये कहाँ से देख सकते हैं कि ये किस टाइम पे आई है, ये कहाँ से एक्टिविटी इसकी होगी कि इस इतने बज के इतने मिनट पे ये टिकट लॉग हुई है हमारे उसमें फ्रेश सर्विस नाउ में, ये कहाँ चेक कर सकते हैं? इंसिडेंट या रिक्वेस्ट? ये रिक्वेस्ट जो अभी है आपको, जिसको आपने अभी रिक्वेस्ट में कन्वर्ट किया ना, जी, जब आप इसको जाएंगे आप इसको ओपन करें. ओके, आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पेरेंट. ओके, ओपन इट आप. आप इसके पेरेंट में इंसिडेंट का नंबर देख सकते हैं. आप उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे भी जा सकते हैं दोबारा से. डिटेल पे आप ये डिटेल तो पे क्लिक करें इंसिडेंट है. नहीं सेकंड नहीं टैब नहीं नहीं, डिटेल्स ये पे क्लिक करो इंसिडेंट है. उमर। दिस और इज द यहाँ पर इंसिडेंट. दिस इज द इंसिडेंट. जो रिक्वेस्ट आपकी ये क्रिएट हुई है वो RITF नंबर यहाँ पे रेजोल्यूशन नोट्स में मेंशन है, अगर आप देखें तो मैं अच्छा सामने. इसमें ग्रिल ये लेफ्ट साइड पे ग्रिल बटन एक बना हुआ जो भी मैं हाँ आपको हाँ बता रहा था ना कि जहाँ पर लिस्ट एक मिनट लेफ्ट पे ये ग्रिल बटन है लेफ्ट साइड पे दी नॉट दिस वन यस दिस वन यहाँ पर ओके. आप इसको क्लिक करें ओके उसके बाद आप रिक्वेस्ट पे जाएं ऊपर ये ऊपर सेकंड सेकंड. सेकंड ऑप्शन लिस्ट के नो, अंदर सेकंड सेकंड ऑप्शन ऑप्शन ये अंडर नहीं नहीं ना, यस या दिस दिस वन. वन इसमें यहाँ पर ओपन ओपन रिक्वेस्ट में ओपन देखो दिस. रिक्वेस्ट. यस, दिस इज ओके. सो और सेकंड नो वन नो, सेकंड वन में ओपन आइटम है. It must be open Mm. items, ओपन not आइटम्स request. होगा ओपन Yes. आइटम होगा रिक्वेस्टेड आइटम ओके, दिस इज द टॉप वन. जी 111 बीच में जी टॉप At टॉप the पे top पे. आपका सेव नंबर. अब यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन किया है कि हमें कैसे पता चलेगा उसमें आप ये गेयर बटन पे जाएं और उसमें आप क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट्स हैं अपडेटेड एंड क्रिएटेड वो आप इसमें ऐड कर लें इसमें एडिट कॉलम यस एंड टाइप क्रिएटेड सर्च पे क्रिएटेड सो दिस वन क्रिएटेड बाय एंड यस आप बहुत उठा रहे हैं इसको आप ओके कर दें नाउ यू कैन सी दैट वन इट विल ये आपके पास डेट और टाइम भी आ जाएगा और आपको किसने क्रिएट किया है इसको तो वो उसका नाम भी आ जाएगा उसके ऊपर अच्छा, ये इस रिक्वेस्टेड आइटम में आपका इंसिडेंट भी मेंशन होगा. अगर आप रिक्वेस्टेड आइटम इसको ओपन करते हैं रिक्वेस्ट को. ओपन करूँ मैं? इसमें पेरेंट के अंदर ये मैप हो चुका है इंसिडेंट. ओके, आई गेस कैश इन्हें पेरेंट फील्ड विजिबल नहीं है, वो इनको विजिबल वो करवाने की जरूरत विजिबल है. कर देंगे ओके ठीक है. रिलेटेड रिकॉर्ड्स में है इसमें देखें इसमें इसके अंदर आ रहा है मे बी. नहीं आ रहा ठीक है वो इसमें विजिबल कर ठीक है. देंगे ओके. ठीक है मैं तो उमर मेरा इसको क्वेश्चन ऐड ये कर था दूं कि जो टिकट इंसिडेंट सर्विस नाउ में लॉग हुआ है उसका टाइम मैं मैच कर रहा हूँ कि जो टिकट लॉग हुई है फ्रेश सर्विस में उसके साथ मैच करना चाह रहा हूँ मैं, ये ताकि कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये जो सर्विस रिक्वेस्ट हमने चेंज की उसके बाद अपेयर हुआ है या फिर उससे पहले ही अपेयर हो गया था ये, क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि जब हमने चेक किया था तब ये टिकट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी अनटिल अनलेस हमने उसको मैनुअली दोबारा इंसिडेंट में कन्वर्ट किया और फिर जाके वो सर्विस नाउ में अपेयर हुई है। ओके, आप फिर या इंसिडेंट का ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं। क्रिएटेड चेक करें. इंसिडेंट में जाएं जो आपका पर्टिकुलर इंसिडेंट है उसकी क्रिएटेड उसका क्रिएटेड टाइम चेक करें. क्या मैंने किधर चेक करेंगे वो? ये देखें, अगर आप इधर साइड में एक्टिविटी में भी चेक करते हैं ना तो एक्टिविटी यहाँ पे में भी भी आपको आपको नीचे शो हो आप जाएगा. ये स्क्रॉल एक्टिविटी में डाउन. बिल्कुल एंड पे बिल्कुल स्क्रॉल पे चल जाएंगे आपको टाइम नजर आ रहा है कि बिल्कुल बॉटम एंड पे पे चले जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बॉटम पे जाओ बॉटम ये आपको टाइम नजर आ रहा है इसको एंड इट्स नो 13 57 एंड उमर भी नहीं, उधर चेक कैस करिएगा। आई गेस इनको लिस्ट में ही देखना पड़ेगा. ये क्रिएटेड का नहीं है, ये इमेज टाइम चेंज हुआ हुआ है समथिंग लाइक. इसमें लिस्ट पे जाएं इसमें दोबारा जी, इसी इनको लिस्ट लिस्ट पे में चेक करेंगे. और या इंसिडेंट वैसे ओपन ये में भी है भी ओपन भी आपका आ आ रहा है रहा है ओपन पे कि भी अभी वो 13. आ रहा था उसके ऊपर हाँ ऊपर यस, ओपन पे आ रहा ओपन था में भी आ रहा था.
वापस जाएं इंसिडेंट दोबारा के इंसिडेंट पे। अच्छा, अब वहां पे हम लोगों ने देखा है कि क्रिएटेड टाइम आ रहा था 157, यहाँ पे आप ये ऑलमोस्ट आप 2 रिक्वेस्ट में चेक कर रहे हैं, आप इंसिडेंट में जाएंगे। उमर भाई इंसिडेंट दोबारा में ऑल जाएं। में जाके इंसिडेंट में जाओ, आप ऑल पे क्लिक करके इंसिडेंट में जाओ ऊपर टॉप ये पे। चलेगा यहाँ पे। ओके, अब अब यहाँ इसका पे आप टाइम चेक करें, यहाँ पे आप पहले ऐड करें क्रिएटेड को इन गियर आइकन से। अब आप टिकट चेक करिए कौन सी है उसके अगेंस्ट टाइम। ये क्रिएट हुई है 13 ये 116 1 6 1:06 और बिल्कुल उमर भाई 1 6। अपना उधर जाइएगा फ्रेश सर्विस में, जाके चेक करिए कितने बजे टिकट क्रिएट लॉग हुई है। तो यहाँ पे लॉग हुई है 4 PM पे, ऐसा ईस्टर्न टाइम। तो ये क्या कंफ्यूजन है, कुछ क्लियर करेंगे इसको लेके? 1 6 यानी कि वहां पहले बनी है यहाँ बाद में बनी है, ये कहना चाह ये रहे कैसे हो गया, वही तो मैं पूछ रहे। तो ये क्वेश्चन इसलिए आया था कि हम तब ने अच्छा, हमने वो ना मैं इसको ना आपको बताता हूँ। चेंज किया। ये इज जी इट जी फॉर CUNJ? नो यूटीएफ। यूटीएफ। ओके, UTF। बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं सर्विस नाम में पहले आई हुई है, फ्रेश सर्विस में बाद में आई है, राइट? टाइम कम बस सर्विस में पहले है, सर्विस इट में शुड बी बाद ऑन द में। सेम टाइम राइट? Okay, okay, I get what you're saying. So, maybe Cass, if you can answer, like what I understand from here is because there are multiple contracts in same DL. So while distributing that service now, maybe take bit longer than to create a ticket. basically it's everything is creating through the email, so it's depend on the email के क्या email जो कन्वर्ट करके उसको टिकट जनरेट करता है, वहां पर आपको थोड़ा सा ना टाइम डिफरेंस नजर आएगा। इट्स नॉट लाइक के भी एक ही ईमेल दो डिफरेंट एप्लीकेशन में गई और सेम टाइम पे दोनों जगह पे टिकट क्रिएट होगा, ऐसा नहीं होगा। तो टाइम डिफरेंस आपको नजर आए, क्योंकि हो रहा ये है कि ईमेल पे ही टिकट्स जनरेट हो रही है, एंड सम टाइम आपको एक एप्लीकेशन में जल्दी टिकट क्रिएट हो जाएगा और दूसरी एप्लीकेशन में हो सकता है बाद में क्रिएट हो। हम तो इट्स लोग नॉट लाइक सिमिलर नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि सिमिलर होगा इससे। एक अगर आपने इसकी टेस्टिंग करनी है तो हमारे पास एक यूजर है, उसका कोई इशू नहीं है, यूटीएफ का ही यूजर है, उसकी एक टेस्ट टिकट करके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं, आई कैन अब क्रिएट अ टेस्ट टिकट राइट नाउ। ये देख कर लेते अच्छा ठीक है, हैं। अली मोहम्मद मालिक के ही ऊपर ही कर लेते हैं। ठीक है। 5-10 मिनट से ज्यादा का डिफरेंस है? नहीं No, सर, no. काफी डिफरेंस है, डिफरेंस आवर्स घंटा? में डिफरेंस। 4 PM एंड 31 नहीं, PM। उनका टाइम जोन में भी डिफरेंट हो। Yes, टाइम if जोन एक तो I'm अपना not चेक कर wrong, लेना। पैसिफिक पे हम यूज करते हैं समटाइम्स सर्विस नाउ में। Okay, so आप ये टेस्ट टिकट क्रिएट कर रहे हैं, देखने लगे कि सर्विस नाम में क्रिएट होती है कि नहीं? जी जी, सबसे पहले तो वो नहीं, सर्विस यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं वाला। यहाँ से नहीं नहीं। नहीं नहीं, यहाँ मैनुअल से नहीं आप नहीं होगा, करेंगे, ईमेल से होगा। ईमेल से ईमेल होगा। से आप क्रिएट मैं ईमेल करेंगे। सेंड कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है, ये समझना कि सर्विस नाउ कैसे कोलैबोरेट कर रहा है विद रेस्ट ऑफ द सिस्टम। सिर्फ ईमेल से जो इंसिडेंट्स क्रिएट होंगे वो फ्रेश सर्विस में, वो ही सर्विस नाउ में क्रिएट होंगे। जो मैनुअल स्टफ है, सिस्टम हैज नो वे टू पिक अप यस दैट स्टफ, वो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ जी, जी ओह बिल्कुल ये बड़ा ठीक है, इंपॉर्टेंट ठीक है, है। ये जी। अंडरस्टैंडिंग। ओके ओके, अली अगर वो टेक सपोर्ट, एक मिनट, मैंने कर दिया ईमेल, वो 2 मिनट बाद क्रिएट हो जाएगी टिकट। हाँ जी, आई बिलीव इज क्रिएटेड। नहीं नहीं, वो कोई और टिकट है। दूर आप मैं चेक करिए टेक्सपोर्ट प्लीज। मैं तो एक फाइल मिनट में ना ओपन वो कर भी रही देख हूँ। लीजिएगा अपना टाइम जोन। क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है टाइम जोन को देखना कि ओके, कितना बजे टिकट लॉग हुई है, ताकि हम उस टिकट से, मतलब लेट्स सपोज हम कभी सीट पे नहीं होते और टिकट मिस आउट कर जाते हैं, एक्सलेट उसको टिकअप नहीं किया तो हमें पता चले कितनी देर पहले टिकट लॉग हुई है विद रिकॉर्डिंग टू ईस्टर्न टाइम जोन। तो ये अली हमारे लिए ये थोड़ा आ गई जरूरी है चीज़ है। टिकट, नहीं ये तो अलर्ट आया। तो अलर्ट का भी देख सकते हैं हम यार वैसे भी। अलर्ट का भी देख सकते हैं वैसे, वाकई अभी इस वक्त ये ओपन में है और इंसिडेंट में है, इसको ऑलमोस्ट इधर दूसरे में बन जाना चाहिए, राइट? 5:37 पे ही आया, अभी आया।
अभी तक नहीं आया इधर। नो। अच्छा, अब मैं अगर इस अलर्ट को मैं एज अ मैं ट्रियाज कर देता हूँ, एज अ सर्विस रिक्वेस्ट ट्रियाज कर देता हूँ, अपडेट कर देते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट आ गया। नहीं, वहां पे इंसिडेंट ही क्रिएट होगा। वहां पे बेसिकली हम ईमेल से ही इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली अगर जो आपने तो रिक्वेस्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो वहां पे भी आपने खुद ही कन्वर्ट करना हाँ, होगा। वहाँ यहाँ पर भी आपको मैनुअल स्टेप ही करना पड़ेगा सर, फ्रॉम इंसिडेंट टू रिक्वेस्ट, जो आप अच्छा वहाँ यहाँ, फ्रेश सर्विस में कर रहे हैं। अब बिल्कुल। यहाँ पे जब तक मैंने उसको ओपन में थी ना टिकट, वो फ्रेश सर्विस में ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हुई है, अनलेस कि हम लोगों ने, अब चले मैं इसकी इंसिडेंट टाइप चेंज करके इसको मैं ट्रांच कर देता हूँ। इसको ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, यानी कि फिर जब तक यहाँ पे ओपन रहेगी फ्रेश सर्विस में नहीं बनेगी वो टिकट। यहाँ पे और सर्विस एक नाउ में ही अलर्ट बनेगी। क्रिएट हुआ है। सर्विस नाउ अच्छा, में नहीं let बनेगी। me let me let me let me clear things out here, निशे। देखो, ये फ्लो समझना है आपने। आपने ना फ्लो समझना है। बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको इनिशियली क्या हो रहा था कि जब टू टिकट क्रिएट होती है ना सबसे पहले, तो वो आपके जो प्रीवियस वर्कफ्लो के थ्रू आपको ईमेल सेंड होती है सर्विस, फ्रेश सर्विस के ऊपर। ठीक है, आप टिकट क्रिएट करते हो, आप उसको रिसीव करते हो, अपने नॉर्मल प्रोसेसेस के जो भी आपकी एसओपीज हैं उनके थ्रू आप प्रोसेस करते हो, एंड करते हो। नाउ वी हैव एन एक्स्ट्रा लेयर जिसमें हम सेम प्रोसेस करेंगे। यूजर ईमेल भेजेगा या अलर्ट के थ्रू ईमेल आएगी, टिकट क्रिएट होगी फ्रेश सर्विस में भी, एंड देन इन सर्विस नाउ एज वेल। ठीक है, आपने जो स्टेप सर्विस नाउ फ्रेश सर्विस में लिए हैं टिकट के अंदर, इधर वो आपने सर्विस रिक्वेस्ट में चेंज किया है या उसको एस्केलेट किया है, वट एवर यू हैव डन, you need to perform all the similar activities in ServiceNow as well. You just need to make sure that similar ticket gets created in ServiceNow, and then afterwards you need to perform all the similar actions, whatever you have done in fresh service. Okay. Now you can see the same alert coming through in ServiceNow as well, right? As an incident. उमर भाई, Uh-huh. जब तक हम लोग इसको ट्रियाज नहीं कर रहे ना फ्रेश सर्विस के अंदर, टिकट सर्विस नाउ में अपीयर नहीं हो रही। Okay. बात ये है, टिकट ओपन में पड़ी हुई है हमारे पास फ्रेश सर्विस में, अनलेस इट्स एस्केलेटेड टू अ टीम और उसकी कैटेगरी अगर इंसिडेंट नहीं सिलेक्ट हो रही, वो सर्विस नाउ में अपीयर Mm-hmm. नहीं हो रही। और हमारे How पास come that? बेशतर बेशतर ऐसी Uh-huh. टिकट्स हैं जो हम लोग सर्विस रिक्वेस्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं, ताकि क्योंकि वो सर्विस रिक्वेस्ट हैं हमारे एजेंट्स के पास एज एन कि उनके ऊपर काम होने वाले हैं। तो ठीक है। वो टिकट्स भी यानी कि अगर हम लोग उसको इंसिडेंट में, चलो अगर हम लोगों ने इसमें रेप्लिकेट करना है, तो क्या उनको भी फिर हम लोग सबकी कैटेगरी इंसिडेंट कर दें सारी नहीं नहीं, वो। देखो आइडियली ये होना चाहिए, आपको उधर से कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए, वो इंसिडेंट ऑटोमेटिकली इधर इधर भी बनना चाहिए। दैट्स व्हाट वी इम्प्लीमेंटेड, लाइक जो ईमेल फ्रेश सर्विस में जा रही है वही ईमेल सर्विस नाउ के ईमेल पे भी आ रही है। ठीक है, तो इफ यू आर इसका सेइंग कि फ्रेश आप जब सर्विस तक से कोई अपडेट लिंक नहीं नहीं है। करते, हाँ, हाँ, अगर आप बिल्कुल। कह रहे हो कि जब तक आप एस्केलेट नहीं करते वो यहाँ पर क्रिएट नहीं होता, दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज एंड वियर्ड, that we can take a look at right now as well, because अभी I mean अभी totally आप एक different scenarios. टिकट क्रिएट कर लें हम्म, एक ईमेल के थ्रू और आप वहां पे चेंज ना करें, और देखिए यहाँ पे कितने टाइम बाद क्रिएट होता है इंसिडेंट। तो दूसरा एक और चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी यहाँ पर कि हमने फ्रेश सर्विस को इंटीग्रेट नहीं किया सर्विस नाउ के साथ। ऐसा नहीं है कि फ्रेश सर्विस में कोई चीज आ रही है उसके बाद सर्विस नाउ में आ रही है, ऐसा नहीं है। ये टिकट दोनों प्लेटफॉर्म पे बन रहे हैं थ्रू ईमेल। तो ठीक है, ईमेल बिल्कुल इनबाउंड के थ्रू दोनों साइड पे बने, इसमें इट्स नथिंग विद द इंटीग्रेशन बिटवीन फ्रेश सर्विस टू सर्विस नाउ। ठीक है। दानिश भाई या अनिल भाई, हम लोग कोई अलर्ट ट्रिगर कर सकते हैं कोई किसी भी किस्म का भी, अगर करना चाहें तो। अलर्ट, अच्छा ये prod एनवायरनमेंट है, राइट? हाँ जी, डेव नहीं है, राइट? नहीं नहीं, कोई अभी एक दो अलर्ट मिनट अगर हम पहले लोग। अभी 2 मिनट पहले फ्रेश सर्विस नाउ में एक अलर्ट जनरेट हुआ CGNJ के DC का। ऐसे ही है वो, लेकिन उसी का ही हम बात कर रहे थे, लेकिन वो भी एक और टेस्ट करना है। अगर हम लोग कोई अलर्ट जनरेट कर सकते हैं मैं इसके मैं ऊपर। रुकिए, मैं एक फेल ओवर करता हूँ, होल्ड कीजिए। ठीक नहीं, है। वो आवे का टेस्ट ना निकाल दें। लेट मी ट्राई दैट।
एक फेलोवर जनरेट किया है यूटीएफ नॉर्थ ब्रुंसविक का, पुट करें। ठीक है, मेरे पास ये पैरेलली ये भी खुला हुआ है, तो देखिए आपका ईमेल आया, चेक कीजिए, चेक कर। यूटीएफ नॉर्थ ब्रुंसविक, ठीक है, चेक करूँगा। दानिश भाई देख लेना। आपने बोला ना मैं कर दिया। ना टेस्टिंग के चक्कर में और आगे चले जाए। नहीं ऐसा नहीं होता। चलो इस तरह P1 भी एक टेस्ट हो जाएगी। आया नहीं पे अलर्ट, अलर्ट तो जनरेट हो गया, फिर और तो वो हुआ। देखो मुझे ये ईमेल आ तो आ गया रहा है। हमारा। यही किया मैंने। अब ये देखें, ये ओपन में पड़ा हुआ है और इस टाइम पे ये हमारे पास फ्रेश अलर्ट्स की वो है, इंसिडेंट की ये टिकट है। So ये let's लास्ट wait. Let's see how much time it takes to pop up. ठीक है? और उमर चेक कर लें, फिल्टर तो कोई नहीं है यहाँ पे आपके? नहीं फिल्टर नहीं है। ठीक है सर इसमें सर्विस नाउ में ना थोड़ा सा अच्छा, टाइम लगता है यहाँ पर, जब सॉरी ईमेल इसमें से एक आपको चीज है, क्योंकि अलर्ट की इसके अलर्ट की जो ईमेल है उसमें सर्विस नाउ का प्रोड भी कॉन्फ़िगर है, तो वो इसके ईमेल पे डिपेंड नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पे टिकट जनरेट हो गया तो सर्विस नाउ को जैसे ही ईमेल मिलेगी वो भी टिकट जनरेट करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल उसका रिलेशन इसकी ईमेल से नहीं है, बट आप देख रहे हैं दोनों में टाइम कितना लग रहा है, राइट? दैट्स इट, राइट? यस यस। अब आ गया। अब रिफ्रेश करते हो तो आपको शो हो यस जाएगा। ठीक है, तो it takes 2 minutes I guess. ओके। Right? यस So एंड टाइम चेक करेगा, टाइम क्या है इधर? 2 minutes and then ये अच्छा ये 14 आ रहे हैं I क्रिएटेड guess. का चेक Noor, करिए। if I'm wrong, ये सर्विस नाउ का जो टाइम जोन है, is it Pacific or Eastern? पैसिफिक Pacific यूज करता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मगर अभी इसको हम चेंज कर दें, इसको इसमें ये चेक आप कर क्या लेते हैं अभी कौन सा हाँ, कॉन्फ़िगर है। हाँ सिस्टम पे सिस्टम लेवल चेंज हो सकते हैं, तो इसको चेंज करें ताकि वो मैच करे, कंफ्यूजन होगी। इवन कि आप अपने प्रोफाइल पे जाके इसको भी चेंज कर सकते हैं। इफ यू गो टू योर प्रोफाइल आइकन एंड देन यू गो टू प्रोफाइल, ताकि आपको वहाँ का लोकल हाँ वो कर हाँ वेरी गुड। यू गो टू एंड गो टू यहाँ पे जाएं प्रोफाइल पे, और यहाँ पर आपको ना ऑप्शन आ रही होगी ये जोन्स, यहाँ इसका लॉस टाइम जोन एंजलिस का वो पिक कर रहे हैं ना, तो इसको ईस्टर्न कर दें, यूएस आई थिंक यूएस ईस्टर्न ये नीचे है, ये यहाँ ये पे इसको अपडेट कर दें तो आपके लोकल हो अब अगर आप जाते हो इंसिडेंट पे तो आप देखो क्या टाइम आता है। 5:40। 5:45 और वहाँ 5:44। तो एक ठीक है, मिनट 1 मिनट का डिफरेंस आया आपके पास। ठीक है, ओके। so this is good पहले good थोड़ी सी ये scenario. कंफ्यूजन हुई थी कि हाँ नहीं, दिस इज वेरी गुड सिनेरियो दैट यू आई वुड सजेस्ट कि आप ये चीजें ना मोर टेस्टिंग इसकी करें, लाइक यू कैन क्रिएट हम तो ना हम क्रिएट नहीं कर सकते अपने यूजर नेम से टिकट्स यूटीएफ के मेल्स पे, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्शंस, बट यू गाइज हैव योर सूडो नेम्स, तो आप लोग यूटीएफ के ईमेल पे टिकट सेंड करके चेक करें मे बी, एंड सी के अगर आपका जो टेस्ट टिकट है वो सर्विस नाउ में कब आ रहा है एंड फ्रेश सर्विस में कब आ रहा है, बट आई डोंट थिंक सो इट विल टेक मोर देन 1 minute एंड या निश्चय इधर फॉर एग्जांपल अभी जो टिकट क्रिएट होते हैं उस पे यूजर भी कमेंट्स डालते हैं, राइट?
तो यूजर पोर्टल पे कमेंट्स डालते हैं या ईमेल पे डालते हैं? नहीं, वो ईमेल आई से बिलीव वो ईमेल से होगा, पोर्टल ईमेल से पे नहीं ही होगा। डालते हैं। वो वो ईमेल पे ईमेल डालते हैं। अपने ईमेल पे डालते हैं। जब वो अपनी ईमेल पे डालेंगे कमेंट्स, तो नहीं नहीं, वो आई सर्विस नाउ में बिलीव कैसे जो अपडेट? कमेंट्स होंगे ना, जो रिप्लाई होते हैं वो ईमेल पे आते हैं। अगर कोई यूजर पब्लिक कमेंट ऐड करता है फ्रेश सर्विस में, तो आई बिलीव वो पोर्टल के थ्रू करता है। पोर्टल के थ्रू करता है। मतलब यस। उसके बाद बहुत ऑप्शन होते हैं ना, अगर वो ईमेल का हाँ रिप्लाई करेगा तब भी पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर पोर्टल पे करेगा तो डेफिनेटली पोर्टल में और ईमेल में दोनों में आएगा। बिल्कुल तो ऐसा ही है। That's right. Cash, correct me if I'm wrong. इस केस में यूजर के पास राइट्स हैं कि वो उसके अंदर कमेंट कर सकता है आके, राइट? हाँ बिल्कुल है। ईमेल से भी जब ओके, भी करेगा वो हाँ, अपडेट होगा सेम एंड टिकट पे, और देन अगर वो, पोर्टल से करेगा तो पोर्टल से हाँ, होगा। हाँ, पोर्टल तो पे भी अगर आके। हमें ये टिकट अपडेट करनी, मतलब पैरेलल में चलानी है, तो हम तो चला लेंगे, लेकिन ये यूजर्स कैसे चलाएंगे? उनको भी हम नहीं कह नहीं रहे हैं कि नहीं आप भी करें। नहीं 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 नहीं, यूजर्स के अभी के लिए यूजर्स के नोटिफिकेशन ऑफ किए हुए हैं हमने। सिकंदर साहब, करेक्ट मी, लाइक do we need to do we need to turn on the नहीं कर notifications for सकते ना। user as well while soft नहीं, launching? मेरा ख्याल है नहीं। कि इसीलिए हम ये टारगेट कर रहे हैं कि अगले 3 दिनों में, हम्म ट्यूसडे एंड ऑफ द डे और मैक्सिमम बाय वेंसडे मिड डे, आप लोग अपने सिनेरियो सारे टेस्ट कर लें, हमें कॉन्फिडेंस आ जाए हम्म कि जो प्लेटफॉर्म है लॉन्च इट कर दें। Okay. फिगर्ड प्रॉपरली। फिर उस पे हम एक सॉफ्ट लॉन्च की ईमेल करेंगे, जिसमें सारे स्टेक होल्डर स्पेशली क्रेडिट यूनियंस को इन्फॉर्म किया जाएगा। वहां पे हम फिर वो जो अलर्ट्स हैं यूजर्स के, वो इनेबल कर देंगे, क्योंकि यूजर्स विल ऑलरेडी बी इन्फॉर्म, ताकि वो कोई शोर शराबा ना मच जाए। अभी हम नहीं करना लेकिन चाहते ताकि वो यूजर्स लॉग इन करना शुरू कर दें, टेस्ट करना शुरू ठीक है। कर दें और कोई एक भगदड़ मच जाए। तो उससे पहले 2 दिन आप अपने पूरे ले लें इसको टेस्ट करने में थॉरोली। हम्म उसके बाद हम सॉफ्ट लॉन्च करेंगे, यूजर्स के हम्म अलर्ट्स इनेबल कर देंगे, और उसमें फिर चंद एक सिनेरियो और ऐड हो जाएंगे टेस्टिंग। ठीक। अच्छा, ठीक ठीक। है। तो एज ऑफ नाउ जो लेकिन यहाँ पर अब टिकट्स हम मेरा एक कंसर्न है, लाइक आई मीन with coming through, I mean just taking the point from Danish talk, like अगर यूजर को सर्विस नाउ से भी ईमेल जा रही है, फ्रेश सर्विस से भी जा रही है, लाइक वो किसको रिस्पॉन्ड करेगा टू कोऑर्डिनेट टू यूजर्स? ये जब बोथ। हम कम्युनिकेट करेंगे तो उनको ये सिनेरियो बताएंगे ना कि ओके। भाई हम सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, अभी हमें आपकी ये सपोर्ट चाहिए। तो आप अगर चंद एक यूजर स्पेशली, अगर सारे नाम भी करें तो चंद एक यूजर नॉमिनेट करें जिनको सुपर यूजर या पावर यूजर का नाम दे दें, जैसे हिरन है, माइक थॉमस है, और चंद एक और लोग, कि भाई आप ये टेस्ट करें, आपको जो ईमेल फ्रेश सर्विस से आए वो सर्विस नाउ से भी आनी चाहिए, और आप जो रिस्पॉन्ड करें क्विकली प्लीज दोनों पे कीजिए, ताकि हम भी इस सिस्टम को टेस्ट कर सकें हमने अल्टीमेटली जो सर्विस नाउ पे जाना है। तो उनको इन्वॉल्व करेंगे टेस्टिंग में, मगर उस टेस्टिंग से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम एक दफा अपनी सॉलिड टेस्टिंग कर लें कि एवरीथिंग इज इन प्लेस। Sure, makes sense. Go ahead, Nishe. Continue, please. ओके, एक और यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जो हम कॉल्स की टिकट क्रिएट करते हैं वो हम मैन्युअली फ्रेश सर्विस में कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सॉफ्ट लॉन्च होगा तो फिर हम वो दोनों फ्रेश सर्विस में भी और सर्विस नाउ में दोनों में अलग अलग टिकट क्रिएट करेंगे, तो क्या उसका सिनेरियो रखना चाहेंगे? सो ये भी क्वेश्चन है। बेटर आई वुड से कि दोनों में क्रिएट करें, ताकि आपका जो इस मंथ का रिकॉर्ड है वो फ्रेश सर्विस नाउ में एटलीस्ट रहे, राइट? तो आई वुड से कि जब आप मैन्युअली उधर क्रिएट करें तो आप एक सर्विस नाउ में भी क्रिएट करें जी सेम बिल्कुल टिकट। ऐसा होना चाहिए। जो मैन्युअली कोई भी एक्टिविटी जो आप फ्रेश सर्विस में कर रहे हैं वो सर्विस नाउ पे भी कीजिए, ताकि आपका सिस्टम इन सिंक रहे, क्योंकि देर इज नो अदर वे वी कैन सिंक इट इन, जब तक आप लोग मैन्युअली दोनों साइडों पे वो एक्टिविटीज नहीं करेंगे। जो भी मैनुअल एक्टिविटी फ्रेश सर्विस पे करें वो सर्विस नाउ पे भी करें, ताकि वो आज से एक हफ्ते बाद अगर हम सिस्टम्स देखें और उसमें पुराने रिकॉर्ड्स देखना शुरू करें या एक इंसिडेंट की हिस्ट्री देखें, तो वो जो मैनुअल एक्टिविटीज हुई हैं दोनों साइडों पे वो सेम हो। ओके, मुझे लगता है इस पे एक डॉक्यूमेंट बननी चाहिए जोहेर। दीज आर वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस एंड लॉजिकल कंसर्न्स, ताकि हम एक गाइडलाइन दे सकें, और वी डोंट हैव मच टाइम। I would really like to have this concluded by mid next week. तो उसमें this is very productive session। मगर मुझे लगता है कि हमें इस तरह के
एक मंडे को भी सेशन करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ में और मे भी सेकंड हाफ में भी, ताकि और इस तरह की क्वेरीज आती जाएं और वो क्लैरिफाई होती जाए। ओके Any other concerns, team? Like that you ओके, think? मैं न्यू पे क्लिक करना, टिकट न्यू क्रिएट करते हुए। टॉप राइट, टॉप राइट। ओके, मैं ये देखना चाह रहा था कोई फील्ड ऐसी हो जो हम, मतलब आप भी देख लो कि कोई फील्ड जो हमें रिक्वायर हो और यहाँ पे ना अवेलेबल हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप टेस्ट करें सारा। This is exactly you need to Okay. test it out, right? Any field Okay. that you think is missed or value, so you can tell us anytime, right? Straight away in a group or ओके, हमें अब ये टिकट लेट्स सपोज निक बनाना चाहते तो मतलब तो इसको इसको रिजॉल्व पे आप क्लिक कर देंगे? नहीं, इसको सिंपली नहीं बनाना चाहते तो बैक कर लें इसको, जस्ट या टेक इट बैक, दैट्स इट। थैंक यू। और उमर भाई, अगर हम लोगों ने कोई चेंज रिक्वेस्ट की टिकट बनानी है अगर कोई नई, तो फिर वो उसके लिए भी क्या उसके ऑप्शंस हैं लिए इसमें? again, let's go to your dashboard. Click on that icon. Yes, click on it. And like Cass mentioned, click on that list at the top. Yes, and you will have an option for changes here. Go to list. Yes, at the bottom third. Yes, open. Maybe you can view all, create new. But this is something only changes. You guys are not creating change tickets, right? Only the level 3 team is. Yes sir. Okay. But you can view the changes, like click all and you can view or maybe create a new one. Sure. So any question, and one more thing, you check on the top as called priorities history. So it's a very like intuitive functionality. Like what you have done like recently, you can go and jump directly to that particular part. So this is very good functionality that, like for example, if you want to go again, which you have done like recently, and then you go click on the history, and then you can also filter it or the find it, and then you can jump it directly. So it will तो also यहाँ like पे save your time. Yes. यहाँ पे हमें ओवरऑल सबकी रिसेंट एक्टिविटीज का पता चलता No, रहेगा it's क्योंकि only on your, not the other ones. This is only your activity. ओके इज इट पॉसिबल कि फिर हम टीम की एक्टिविटी भी चेक कर सकें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि ना हमें बाकी टीम्स के कमेंट्स देखने होते हैं या उनको अपडेट करना होता है अभी कि आपकी टिकट पे ये कमेंट आया, तो ये पॉसिबल है? जैसे फ्रेश सर्विस में वो सबकी सारी एक्टिविटी शो करता है पूरी एजेंट, सब एजेंट्स की। होना तो चाहिए। इसमें अगर आप या ये यहाँ चीज पर्टिकुलर पर हेल्प टिकट करती पे है चेक हमें? करना चाह रहे हैं नहीं किसी? पर्टिकुलर टिकट नहीं, मैं अब दिखाना यार। जिस तरह हमारे पास ना यहाँ पे रीसेंट एक्टिविटीज में ना सबका आ रहा होता है कि क्या ये राहुल ने इस टिकट पे अभी कोई चेंज किया है, तो अगर उसने कोई चीज देखनी या हार्ड देखने कोई किस तरह किया है, तो ये सब का ना हमारे पास एक रीसेंट एक्टिविटीज का, अब यहाँ लेस्ली ने कोई टिकट भेज दिया, एक पूरा का पूरा ना एक लॉग होता है कि जिसपे हम लोग जाके आराम से देख लेते हैं ऐसे यार इस बंदे ने यहाँ पे ये किया कि डू वी हैव दैट फंक्शन इन सर्विस नाउ? We Think do it have better to logs, but No, not not logs. not the log. There No, is a. no, logs is not for Let me. agents. मैं okay. करता है. So yeah. तो डैशबोर्ड पे ना Okay. वो अपडेट्स आ रहे होते हैं. एक सेकंड, let me check. One second.
इसका वो जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है ना, उसमें कोई इस तरह की ऑप्शन थी। मैं नीचे ना वो चेक करता हूँ, इफ आई एम एबल टू फाइंड इट, मैं आपको बताता हूँ। Okay. और हम किसी और एजेंट्स की टिकट चेक करना चाहें कि लेट्स सपोज मैं छुट्टी पे हूं, तो नीचे मेरी टिकट चेक करना चाहता है कि उसके ऊपर कोई अपडेट तो नहीं है, तो वो कैसे चेक कर सकते हाँ हैं कि स्पेसिफिक एजेंट को असाइन टिकट्स कैसे चेक कर सकते हैं? वो तो आपके पास राइट्स हैं, कोई किसी की भी टिकट जो है ना वो वो देख आप सकता है, पर्टिकुलर एजेंट को सिलेक्ट करें और उसका नेम जो भी है उसकी सारी टिकट्स हाँ आपके सामने आ जाएगी और एंड यू वो कैन कहाँ से गो। होता है? किधर से वो करना है? यहाँ पे आपके पास गेयर आइकन्स भी शो हो जाता है इंसिडेंट्स पर भी, लाइक असाइन असाइन टू पर्टिकुलर असाइन टू। इंसिडेंट्स में अगर आप जाते हैं तो इसमें ये है ऑल ना मतलब कि आप इंसिडेंट्स ये में लिस्ट अपनी जाएंगे ये फिर। लिस्ट भी क्रिएट कर लिस्ट, सकते हैं हम सब एजेंट्स एक हाँ दूसरे इसमें की? माई लिस्ट, हाँ बिल्कुल। माई ओके, लिस्ट दैट्स पे वेरी आप गुड। जाए ना, वहां पर आप लिस्ट क्रिएट कर लेंगे अपने लिए। थैंक यू। अब ये ठीक साइन है। टू में आप सबको देख सकते हैं कि किसको क्या असाइन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो कंटेन्स ठीक। विद और तो ये वाली मैं चेक कर लेता हूँ फंक्शनैलिटी, बट इट्स रियली नाइस वन के भी आप, मैं वो देख रहा था कि बड़ी अच्छी ये, इट्स वेरी गुड फंक्शनैलिटी टू यू कैन check your all the काफी activities हेल्पफुल भी है हमारे लिए ना। across the guest agents. So okay, let me check and then get back to you guys. अच्छा आप ओपन चेक करते हैं करेंगे तो एक्टिविटी स्ट्रीम। सॉरी, सॉरी जय भाई कंटिन्यू करें। अब जस्ट सेइंग कि वो एक्टिविटी स्ट्रीम है इसमें। आई विल जस्ट सी। हिस्ट्री है इसमें, लेकिन इट्स ओनली नहीं, योर एक्टिविटी ओन दिस इज नॉट, एक्टिविटी। दैट्स नॉट फॉर द एक्टिविटी हिस्ट्री स्ट्रीम, बेसिकली। यस एक्टिविटी स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें है। मैं इनको बताता हूँ थोड़ी एक सेकंड। आप 10 बजे बताएं, मैं इनको कहता हूँ। निशे, अगर आप ये ठीक। इस आइकन पे क्लिक करते हो ना, तो ये इस पे शो करता है आपको एक्टिविटी स्ट्रीम। यस, ठीक सी है। दिस। ठीक है, इस पे आपको लेटेस्ट एक्टिविटी सारी आ रही है। यहाँ हाँ, पर ओपन एंट्री दी हुई है। नहीं, नीचे प्रॉब्ली ना वो ब्लैंक अलर्ट्स होंगे, तो सारे वो उठा रहे हैं, सिग्नेचर ज्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं स्पेस। बट या बेसिकली दिस इज द सेम फंक्शनैलिटी। हाँ बेसिकली ये वही स्ट्रीम है, एक्टिविटी है जो ऑडिट ट्रेल, हम आप अगर ओपन करें तो लेफ्ट पे एक पैनल ओपन करता है, ये वही वो है ऑडिट ट्रेल एक्टिविटी है जो यहाँ पर आ रही है, इसको एक्टिविटी स्ट्रीम। ठीक। ठीक है छुट्टी करें फिर। So guys, yeah, so anything you need to know or have any question, you just ping me, Amal and Noor or Umar. So we'll be here for help you guys.
अच्छा ऐसा करें, इसमें एक उमर एक ना मंडे को भी कॉल अभी से स्केड्यूल कर दें, जिसमें ये कंप्लीट डे पे टीम यूज करे इसे, और उसके बारे में एंड ऑफ द डे कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई थिंक वी विल हैव मोर प्रोडक्टिव सेशन मंडे को भी और ट्यूसडे को भी। ठीक है। व्हाट टाइम इज गुड, क्योंकि सर्विस नाउ टीम तो पॉसिबली पहले भी कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि आप लोग क्योंकि अपनी शिफ्ट में बिजी होते हैं तो शिफ्ट के दौरान शायद ना कर सकें, या हम 2 सेशन कर लेते हैं। अगर आप लोग 5 बजे के बाद करना इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करोगे तो हम सर थोड़ा अर्ली कर लें तो बेहतर। वो अर्ली, असल में अर्ली का प्रॉब्लम ये है ना कि टीम इज बिजी, दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो उसमें फिर 2 सेशन करने पड़ेंगे आपको कैश, क्योंकि स्प्लिट करना पड़ेगा कि 2 लोग एक सेशन में आ जाएं और 2 लोग एक सेशन में आ जाएं ताकि वो अपनी सर्विसेज में इंटरप्शन ना हो। तो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अगर सब ने इकट्ठे आना है तो फिर उसमें 5 बजे के बाद ही करना पड़ेगा। आप लोग what do you think, what is better? The सेम question टाइम is for सही, MSSP 5 to 6। 5 to 6 ठीक है। कैश भाई थोड़ा सेक्रीफाइस करो 2 दिन के लिए, जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चों की। तो वो अच्छा है, चले कोई ये मुश्किल आपको ये अगले एक आखिरी उसमें आखिरत में इसका स्वाब मिलेगा। दुनिया में कुछ नहीं मिलना। दुनिया में जो मिलना था इसको मिल चुका हुआ है, इज वेरी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, तो फिर उमर ऐसा करें मंडे और ट्यूसडे के सेशंस रख दें, बट मैं इन द अभी मीनवाइल एज कैश सेड, आपका कोई क्वेश्चन हो इन द मीनवाइल जस्ट पिंग हिम डायरेक्टली, अमल को, नूर को, इसको पिंग करें टीम्स पे कि भाई ये मैं देख रहा हूँ सिनेरियो, इसमें मुझे थोड़ा गाइड कर दें। और जोहेर आप प्लीज ऐसा करें, कुछ जो चीजें जिस तरह की क्वेरीज हैं उनको लॉग करते जाएं, या टीम को एक फॉर्मेट दे दें कि हर चीज लॉग हो, ताकि एवरीथिंग शुड बी क्लोज्ड एट एंड ऑफ द डे। अगर कोई ओपन इशू उस लॉग में रहे तो फिर उसका हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों ओपन है। ठीक है, ठीक है, टीम से भी ये कोऑर्डिनेट कर लें कि वो कैसे लॉग करेंगे जरूरत में, ताकि वो मीनिंगफुल डाटा इकट्ठा हो आपके पास। जी ठीक है। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है फ्राइडे को लेट कॉल्स चुभती हैं बहुत ज्यादा, बट वी हैड टू डू इट। मंडे ट्यूसडे को भी करना पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। Sure. Okay, थैंक sir. यू।